سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال سنگین۔ دریائے چناب میں دغیانی، ملتان شہر خطرے میں۔ ملتان شیرشاہ کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔ پانی کا لیول مزید بڑھنے سے ہیڈ محمد والا کے قریب بند توڑا جا سکتا ہے۔ خانیوال میں صورتحال پریشان کن، لوگوں کا انخلاء جاری۔ مظفر گڑھ کے مقام پر دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,69,000 کیوسک۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ کئی ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ خیرپور ٹامے والی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، پانی لوگوں کی فصلوں اور گھروں میں داخل۔ خیرپور ٹامے والی میں دن با دن سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک۔ دریائے راوی میں ہیڈ ستنائی پر اونچے درجے کا سیلاب۔ کبیروالا کے مقام پر راوی کا پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل۔ رانگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف، درجنوں آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان دریائے چناب میں طغیانی، ملتان شہر خطرے میں۔ ملتان شیرشاہ کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔ پانی کا لیول مزید بڑھنے سے ہیڈ محمد والا کے قریب بند توڑا جا سکتا ہے۔ خانیوال میں صورتحال پریشان کن، لوگوں کا انخلاء جاری۔ مظفر گڑھ کے مقام پر دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ہیڈ پنجرت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,69,000 کیوسک۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ کئی ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی۔ خیرپور ٹامے والی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، پانی لوگوں کی فصلوں اور گھروں میں داخل۔ خیرپور ٹامے والی میں دن با دن سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک۔ دریا راوی میں ہیڈ سدنائی پر اونچے درجے۔ خانیوال میں سیلابی پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ خانیوال کے رہائشی کی تمام جمع پونجی سیلابی پانی کی نظر ہو گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے مظفر بشیر۔ جی، نہر کا بند ٹوٹنے سے جو ہے وہ جہاں سینکڑوں ایکڑ جو ہے وہ رقبہ جو ہے زیر آب ہے، وہاں پر رہائشی بستی میں بھی جو ہے وہ گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ ہمارے شہر کا ایک متاثرہ شخص موجود ہے جس کا گھر جو ہے وہ پوری جمع پونجی جو ہے وہ نہری پانی کی جو ہے وہ نظر ہو گئی ہے۔ جی بابا جی کیا بتائیں گے؟ غلام فرید صاحب کیا بتائیں گے؟ مکان میری دائیں گئے تھے، نال مٹی بیچ موٹ گئی تھی، لوٹ گئی تھی کوشو، میں کوئی نہیں امدادی کرے تھا میری، میں کسی بجائے سے غریب بندہ تھی، مہربانی کرے تو مٹی کٹوا دیکھتے تو مٹی کوئی لوٹ گئی تھی، کوئی دانے لوٹ گئے تھے، رو دی کوئی نہیں، میں کی کرا اس سے مہربانی کرو تو امداد کرو ساری، اگر تھوڑی امداد واسطے بیٹھے میں تو غریب امداد کرو سارا، کوئی بھی نہیں کرے تو امداد۔ جی یقیناً جو ہے وہ غلام فرید جو ہے وہ جہاں اپنی جمع پونجی جو ہے گنوا بیٹھا ہے، وہاں پر کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر دکھانا چاہے تو میرے عقب میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے ان کا مکان جو ہے وہ بالکل گر چکا ہے اور جو ہے وہ نہری پانی کی نظر ہو چکا ہوا ہے، اور وہ کسی نہ کسی مسیحا کا منتظر ہے، وہ حکومت وقت جو ہے وہ کسی بھی تعاون کا منتظر ہے۔ بہت شکریہ مظفر بشیر آپ کا۔ ترنڈا محمد پناہ میں سیلاب متاثرین کے لیے نوروالا میں لگایا گیا فلڈ ریلیف کیمپ انتظامیہ کی کارکردگی برائے نام۔ جانوروں کا چارہ، میڈیسن، خیمہ جات بروقت نہ ملنے پر شہری انتظامیہ سے نالہ ہیں۔ ترنڈا محمد پناہ میں سیلاب متاثرین کے لیے نوروالا میں لگایا گیا فلڈ ریلیف کیمپ انتظامیہ کی کارکردگی برائے نام۔ جانوروں کا چارہ، میڈیسن، خیمہ جات بروقت نہ ملنے پر شہری انتظامیہ سے نالہ ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے غلام علی سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت میں ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے نوروالا میں فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہوں، جہاں پر فلڈ ریلیف کیمپ میں ایک متاثرہ میرے ساتھ موجود ہے۔ اس سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کو اس کیمپ میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انتظامیہ کی جانب سے کن کن سہولیات کا فقدان ہے۔ بھائی ایسا کو کلو کا سوں کر گھنن تے چناب دوں اکھن تو کو جڑا مال دا کھانا ہی دیسوں، تواڈا کھانا ہی دیسوں، تمبو دیسوں، جڑا نا تساں اپنا مین دا بارش دا ہی دا جڑا نا تواڈا دفاع کرے سوں۔ ہن اساں دوجا جڑے بیٹھے تھے نہ اساں کو مثلا تمبو ملیا نہ مال دا چارہ مل دے، لیکن نہ جب آمدن روٹی کھاون لوگ تا لیکن ایک عدد مند دی روٹی نہیں لیندے، جب پیچھے سالا مال کلھا بیٹھا رہندے، مطلب ہے جو تو اگر بندہ تے کہ مال نال تے بلا تے اونے نا سالی سہولت ملی، اساں کو تمبو بھی ملیا ونجے، مال دا چارہ ہی ملیا ونجے۔ یہاں پر کئی سہولیات کا فقدان ہے۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر تمام تر سہولیات جو ہے بر وقت مہیا کی جائیں، انہیں جانوں کا چارہ بھی دیا جائے، انہیں بیٹھنے کے لیے ٹینٹ بھی دیا جائے، جو خیمہ جات ہیں وہ بھی دیے جائیں، تاکہ وہ باعزت طریقے سے یہاں اپنی فیملی کے ہمراہ رہائش پذیر ہوں، اور ان کے جو جانور ہیں وہ بھوکے نہ مریں، یہ بھوکے نہ مریں، انہیں بار وقت چنا جو ہے وہ وقت پر ملنا چاہیے۔ جی
गुलाम अली, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब मुतासरीन के लिए नूरवाला में लगाया गया फ्लड रिलीफ कैंप इंतजामिया की कारकर्दगी बराए नाम। जानवरों का चारा, मेडिसिन, खैमाजात बरवक्त न मिलने पर शहरी इंतजामिया से नाला। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में तेजी। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। हेड इस्लाम पर इस वक्त 1,01,000 क्यूसिक हो गया। हेड इस्लाम के 29 दर्रों को वक्फे से खोला जा रहा है। आपको अपडेट करें, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में तेजी। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। हेड इस्लाम पर इस वक्त 1,01,000 क्यूसिक हो गया। हेड इस्लाम के 29 दरों को वक्फे से खोला जा रहा है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी, जब से सैलाबी सूरत हाल 2025 की हुई है, उस वक़्त से लेकर अब तक इस हेड इस्लाम पे जिस पे हम मौजूद हैं, इस पे 1 लाख क्यूसेक नहीं हुआ था पानी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 1,02,000 क्यूसेक पानी जो मापने का आला है, नापा जाता है जिससे, उसके मुताबिक 1,02,000 क्यूसेक पानी इस वक्त यहाँ से क्रॉस कर रहा है। हेड गंडा सिंह पे जो पानी 3,35,000 था, वो थोड़ा सा कम हुआ, 3,27,000 क्यूसिक हुआ है। हेड सुलेमान की पे भी इसी तरीके से। हम थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे यहाँ पर जो इस हेड के ओवरसीयर है तौसीफ साहब हमारे साथ, हम उनको ज्वाइन करने पे उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आप जरा बताइएगा कि सबसे पहले तो आवाम के लिए ये बताएं, कितनी संगीन सूरत हाल है, या नॉर्मल है, खतरे की पोजीशन है या नहीं है? जो पानी भी पीछे से आ रहा है वो बहावलपुर और बहावलपुर जिले के इलाके कितने मुतासर कर सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक है संगीन नताइज की, तो इस सिलसिले में बताता चलूँ कि हमारे पास जहाँ से भी हम पानी गुजरा है, यहाँ से जितना भी पानी गुजरा है वो दरिया के बंद को तोड़ के बाहर नहीं निकला, जितने भी सरकारी बंद है। नुकसान सिर्फ उस सूरत में होता है कि लोगों ने जो कब्जा किया हुआ है ना दरिया के अंदर, जिम्मेदारा बन जो टूटते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कितने दर्रे हैं इसके, किस तरह पानी छोड़ा जाता है, पीछे से कैसे आप मापते हैं, यहाँ कैसे छोड़ते हैं, आगे कितनी तरतीब होती है? यहाँ पे हेड इस्लाम पे टोटल दर्रे हैं 29, जिसमें जो 18 दर्रे हैं उनकी विड्थ होती है 60 फीट और जो 11 दर्रे हैं उनके 29 फीट। इसके अलावा नापने का आला हमारे पास यहाँ पे गेजेस लगी हुई हैं, उन गेजेस के अकॉर्डिंगली हम उसको नापते हैं और फिर वो हमारा डिस्चार्ज बनता है। पानी छोड़ने के हवाले से कि आगे जाके इतना पानी जो नॉर्मल रहेगा, बस्ती नहीं डुबोएगा, पीछे से आप कंट्रोल करने के हवाले से गाइड कह लें, गाइड बंद कह लें, उनको कैसे ऑपरेट करते हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 गाइड बंद हैं। हम ऑपरेट करते हैं गेट्स को, और हमारे पास यहाँ पे पॉन्ड लेवल होता है जो कि हम मेंटेन करके रखते हैं फॉर दी ऑपरेशन ऑफ कैनाल्स को चलाने के लिए हमारे पास इसका यहाँ पे पॉन्ड लेवल है। लेकिन जब फ्लड आता है उस कंडीशन में हम अपने पॉन्ड लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि तब हमारे कैनाल्स नहीं चल रही होती। हम पानी को रोकते नहीं हैं, फॉर द सेफ्टी ऑफ बैराज जितना हम रोक सकते हैं वो रोकते हैं। अगर हमें ये लग रहा हो कि बैराज को नुकसान हो सकता है तो हम फिर रिलीज़ करते हैं। हमारा जो कंसर्न होता है वो होता है डिपार्टमेंट को या जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको बचाना होता है। इन दिनों में आप नहरों में पानी क्यों नहीं डालते, जरा ये आम आवाम को समझाने? देखिए, ये बहुत ही आम सा सवाल है जो कि काफ़ी लोग करते भी हैं, हालांकि लोगों को ये समझना चाहिए जब भी दरिया में पानी आता है तो उसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर कैनाल्स को ऑपरेट किया जाएगा ना तो वो मिट्टी कैनाल्स में भी जाएगी। जब कैनाल्स चोकअप होंगी तो फिर उनको ऑपरेशनल करने के लिए डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया। हम इस वक्त हेड इस्लाम पर मौजूद है, जहां पर पानी की सतह डे बाई डे, बल्कि बतदरीज, डे बाई डे तो बहुत बड़ी बात है, बतदरीज पानी की सतह बढ़ती चली जा रही है। 1,02,000 क्यूसिक इस वक्त पानी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, जो कि पहली बार 2025 में जब से इस सैलाबी सूरत आ रही है इस तरह का सामना यहाँ पर हमें करना पड़ रहा है। इसी तरीके से गंडा सिंह जो है और हेड सुलेमान, वहाँ से पानी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमें एक और बड़ी अहम इतला मिली है कि हेड सिंह पे जो पहले 385 का शायद हमें फिगर दिया गया था वो वैसा नहीं था, लेकिन अब सही तरीके से उन्हें मापा जा रहा है और 335 के नज़दीक, या अब जो कम 327 के नज़दीक यहाँ पर गंडा सिंह पे चल रहा है क्यूसिक रेट, और की पे आके ये तकरीबन 140 के नज़दीक गुजर रहा है, जो कि यहाँ पहुँचता है। और फिर यहाँ से मेलसी साइफन जहाँ पर 95 से 96,000, फिर बहावलपुर, और बहावलपुर के बाद हेड पंजनत तक ये 5 दरिया जो मिलते हैं उनमें से एक दरिया जो सतलुज है वो बहावलपुर से यहाँ से गुजरता हुआ सारे का सारा पानी हेड जाता है। इसके अलावा हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि 1,000 से ज्यादा मुआवजात जो है वो बहावलपुर के इसी पानी से मुतासिर हो चुके हैं। 31 तकरीबन फ्लड रिलीफ कैंप बनाए जा चुके हैं, 2 से 3
हेड पंजनद पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। आपको अपडेट करें, हेड इस्लाम पर इस वक्त 1,01,000 क्यूसिक हो गया। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,00,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में तेजी। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,00,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। हेड इस्लाम पर इस वक्त 1,01,000 क्यूसिक हो गया है। दूसरी जानिब हेड पंजनद पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। इस वक्त हेड पंजनद पर पानी की आमद 1,85,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। पानी की सतह 3,00,000 क्यूसिक होने पर सारे दर्रे खोल दिए जाएंगे। हेड पंजनद 8,65,000 क्यूसिक पानी गुजारने की गुंजाइश रखता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। हेड पंजनद पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। इस वक्त हेड पंजनद पर पानी की आमद 1,85,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। पानी की सतह 3,00,000 क्यूसिक होने पर सारे दर्रे खोल दिए जाएंगे। हेड पंजनद 8,65,000 क्यूसिक पानी गुजारने की गुंजाइश रखता है। रजा मलिक से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, एक बार फिर उनकी जानिब चलते हैं। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 1,85,000 क्यूसेक पानी की जो है आमद है और तमाम दरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने का अमल जो है वो महकमा आपाशी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और लेकिन जो मसला ये है कि पानी जहां 8,65,000 गुंजाइश रखता है क्यूसेक पानी ये गुजारने की है पानी, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये कि मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये एक पूरा बेला है जो वस्त तक बना हुआ है और इस बेले को हटाने के हवाले से किसी किस्म के इकदामात नहीं किए गए। ये कभी पानी की गुजरगाह थी, पानी का बहाव था, यहां से पानी गुजर कर आगे की तरफ बढ़ता था, लेकिन अब हेड पंजनद की जो अपस्ट्रीम है उसमें वस्त तक जो है ये बेला बना हुआ है और इस बेले की वजह से जो है वो पानी का यहाँ प्रेशर न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि पानी यहाँ आकर रुकने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीछे आबादियां हैं वो बुरी तरह से मुतासर होने का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं जतोई से भी और अलीपुर से भी हमारे नुमाइंदे। राना इब्रार, क्या सूरत हाल है शहर सुल्तान रुल्ला वाली, किस कदर सैलाब और कितनी आबादियां मुतासर हो रही हैं? वहाँ पे कम से कम 3 मवाज़ात हैं जो मुतासर हो रहे हैं, जिसके अंदर है हमजे वाली है, उसके साथ मीरापुर का भी इलाका है और उसके साथ साथ भिंडा इसाक भी है और काफ़ी इसके साथ तकरीबन कोई 28 के करीब बस्ती हैं और जो लगभग और कुछ नहीं तो 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं इससे मुतासर होंगे। और जो आज जो है एक ब्रीच हुआ है सुबह जो खुद यानी कि उसकी वहाँ पर जो दरियाए चनाब का जो पानी था तो 11 करोड़ की लागत फैलना शुरू हो गया। जी हमारे साथ अलीपुर से भी नुमाइंदे मौजूद हैं। राना इमरान सदी साहब, हेड पंजनद पे पानी मुसलसल इजाफा हो रहा है, कौन सी करीब करीब से आबादियां हैं जो मुतासर होने की ज़्यादा इम्कान? जी इस वक्त सबसे पहले तो मड वाला है सर अलीपुर में, उसके बाद हम आगे निकलते हैं तो डमर वाला जनूबी है, उसके साथ मक्खन बेल है, अजमतपुर है, कुंदराला है, जागीर सादकाबाद है और इसके साथ बेट मुल्ला वाली है। अच्छा सर, ये जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो ये वो निशेबी इलाके हैं। अजमतपुर के हवाले से हम बात करें तो उसका जो हिफाजती बंद था सर वो नहीं बन सका था। जब ये पानी सर पर आ गया, सैलाब सर पे आ गया तो उसके बाद जो है वो अजमतपुर बंद पर मशीनरी लगाई, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह आपने जिस तरह ये सर बताया कि पानी की रुकावट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हेड पंजनद वर्क्स पर सर इस वक्त जो है मुलाजमीन की जो तादाद है वो 215 है और 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो तनख्वाह है उनकी वो बन रही है। ये जो रुकावट है सर ये इंतहाई तशवीशनाक है। ये पानी जब यहाँ से गुजरेगा नहीं तो ये पीछे बैक मारेगा तो सिपर 1 जो है जिसमें ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया तो लामाला उसको बिल्कुल जो मार्जिनल बंद है, राइट मार्जिनल बंद और लेफ्ट मार्जिनल बंद पर जो है इसका प्रेशर आएगा। ये एक बहुत बड़ा रकबे पर जो एक बेला बना हुआ है, क्योंकि सतलुज का पानी भी यहाँ पहुँचना है, दरिया चनाब और रावी का पानी भी यहाँ से गुजर कर ही आगे सिरकी के मकाम पर दरिया सिंध में जाएगा। इस वक्त जो है अमली तौर पर यहाँ पानी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और हर घंटे में यहाँ इजाफा हो रहा है। इस वक्त 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी बेला जो है उसकी यहाँ आमद है। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस नकल मकानी का सिलसिला जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और फील्ड में सरगर्म अमल हैं। रजिस्टर्ड NGOs के ताउन से रिलीफ कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। मुतासरा अफराद को खुराक, पीने का पानी, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। आपको अपडेट करें, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस नकल मकानी का सिलसिला जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और फील्ड में सरगर्म अमल है। रजिस्टर्ड NGOs के ताउन से रिलीफ कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। मुतासर अफराद को खुराक, पीने का पानी, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जा रही है।
बहावलपुर की तहसील सदर की असिस्टेंट कमिश्नर कुर्रतुल्लाह ने कोट दादू के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर 50 मुतासरीन में राशन के साथ साथ जानवरों के लिए वंडा भी फराहम किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे दिलशाद जोया से। जी दिलशाद। बिल्कुल जी, एक तरफ तो दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी है, तो दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो भी पूरी तरह मुतारक हो चुकी है। जो सैलाब की जद में आने वाले मुतासरा लोग हैं उनको राशन तकसीम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील बहावलपुर की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा। मैम, आप बताइएगा कितने लोगों को अब तक जो है वो आपने राशन तकसीम कर लिया है? जी, अभी तक हमने ये 2 मवाज़ियात में राशन तकसीम किया है। तकरीबन 50 फैमिलीज में हम तकसीम कर चुके हैं और ये सिलसिला डेली बेसिस पे ऐसे ही जारी रहेगा। मुतासरा लोग भी मौजूद है, उनसे बात करूंगा। भाई, आप बताएं कैसे देख रहे हैं आप मैम साहब के इस बयान? जी, अभी एसी सदर बहावलपुर मैडम कुर्रतुल्लाह साहब अभी हमारे पास आई हैं और बच्चों को और हमारे ख़ानदान को जो मुतासरीन हैं उनमें राशन तकसीम किया है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहावलपुर की ये नवाही इलाका है कोट दादू गलो, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर बहावलपुर के जानिब से जो है वो यहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा है और छोटे बच्चों को जो है वो जूस भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे विजिट भी किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत। बहुत शुक्रिया दिलशाद जोया, आपने हमें अपडेट किया। नौशहरा जदीद में भी सतलुज की तबाहकारियां बदस्तूर जारी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सतह 80,000 से 90,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। पतन झबीला का बंद टूटने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और फसलों में दाखिल। MPA PP 251 के सेक्रेटरी का मुतासरा इलाकों का दौरा। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक हबीब लांग। बिल्कुल, दरिया सतलुज के किनारे पतन झबेला पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो 80 से 90,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इन बस्तियों में दाखिल हो चुका है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर है। मेरे साथ इस टाइम इलाका मकीन मौजूद है, उससे बात करेंगे। ऐसे ही जो है ना बांध टूटे थे, साकू अपील लीती उन्हें की उन्हें मरे नवा को खसूसी साहब दरखास्त करें सारे साहब को लौट गए। असा रात बंद करास करते दिया बैठूं ते साकू MPA खालिद साहब को ने सारे को अपील है जिन्होंने सारी मदद की थी। उन्हें साकू दाने दीते उन्हें साहब को चीज दी थी उन्हें। जी, मेरे साथ इस टाइम PP 251 MPA सरदार खालिद वारन साहब के सेक्रेटरी भी मौजूद, से बात करेंगे। इंशाल्लाह वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तमाम घरानों की लिस्ट वो मुहैया करेंगे और मुझे उम्मीद है इस मुश्किल की घड़ी में सरदार खालिद महमूद वारुन साहब हर तरह की कोशिश करेंगे, पहले की तरह अपनी अवाम के साथ इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करेंगे और इनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मलिक हबीब लांग। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं खैरपुर टामेवाली के गवर्नमेंट हाई स्कूल असरानी में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में से सैलाब मुतासरीन मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है हमें 3 टाइम का खाना और जानवरों के लिए वंडा और चारा वाफर मिकदार में दिया जा रहा है। मुश्ताक जो या तफसीलात से आगाह करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त खैरपुर टामे वाली इसरानी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पर इलाका मकीन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, महफूज जगह पर पहुंचे हैं। तो उनसे बात करते हैं इस बारे, उनका क्या कहना है। सही बाबा जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो सारा कुछ मिलता भी है? सारा कुछ मिलता भी है, सब कुछ। अच्छा, डंगरा आसे सब वो मिलता भी है, भूख शू हर कुछ मिलता भी है, सानू खाना चाट में मिलता भी है। अच्छा, ठीक ठाक है, खुश है, ठीक है। तो हुकूमत मुतमईन है? सही मुतमईन है हुकूमत दे। जी बिल्कुल, आपने जो बुजुर्ग की बात सुनी, उनका कहना है कि हमें हर चीज़ यहाँ पर मुहैया की जा रही है, हम इस चीज़ पर मुतमईन हैं। तो एक और भी यहाँ पर एक आदमी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर जी, हमको यकी हर शय मिल रही है, तरह टाइम रोटी मिलती है, मंडा शंडा हर शय मिलती है हमको। हुकूमत हमको हम चीज़ की कोई परेशानी नहीं देती है, हुकूमत हर शय हमको मिलती है। जी बिल्कुल, जिस तरह ने आपने यहाँ पर इलाका मकीन की वासियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें हर चीज़ खुराक जानवरों के लिए और वंडा और 3 टाइम का जो खाना है वो हमें मुयसर किया जा रहा है। वेलकम बैक। बहावलपुर में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 20 किलो का थैला एक हफ्ते में 1600 से बढ़कर 2300 रुपए, 15 किलो का थैला 1260 से 1725, 10 किलो का थैला 840 से 1150 रुपए का हो गया। गल्ला मंडी में भी शहरियों को आटा न मिलने की शिकायत है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना।
बिल्कुल जी, बहावलपुर में आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं गल्ला मंडी में मौजूद हूं और यहां पर गंदम का रेट जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है और साथ साथ उसके बायस आटा जो है उसकी कीमतें पिछले हफ्ते से बढ़ना शुरू हो गई हैं। और कितनी कीमतें बढ़ी हैं इस हवाले से हमारे साथ शरीफ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी। आज तकरीबन एक हफ्ते से ऊपर हो गया, आटे का पर मटी रेट बढ़ता जा रहा है। पहले आटे का रेट था 1100 रुपये 20 किलो का, आज आटा हो गया 2300 रुपये का 20 किलो। इसलिए आवाम बहुत परेशान है और आटा मिलने को बिल्कुल नहीं मिल रहा खाने को, और परमटी रेट बढ़ा के आवाम को बहुत मजबूर किया जा रहा है। इसे लिहाजा के गंदम पहले थी 2400 रुपये मन, तो ये गवर्नमेंट जब तक ये 2400 रुपये गंदम थी तो बिल्कुल सुकून था, आटे का रेट कम था। जब से ये गंदम का रेट अब इस टाइम 3800 3700 रुपये में भी गंदम नहीं मिल रही, मार्केट में इतना बुरहान चल रहा है। तो हमारे लिहाजा ये बात है कि गवर्नमेंट से कि भाई इस पे तवज्जो दे और गरीब आवाम को सहूलत दे। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है और बहरान जो है वो एक बनता नजर आ रहा है आटे का कि जो मिलें हैं वो लिमिटेड जो स्टॉक है वो जारी कर रही हैं, जिसके बायस एक तो बुरहान भी पैदा हो गया है और साथ साथ रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे इन्होंने कहा कि एक हफ्ते के दौरान रेट दुगना हो चुका है, तो ये सूरत हाल इस वक्त अब बहावलपुर की गल्ला मंडी की है और शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे और आटे का रेट जो है वो। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से और गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खां की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। गाजी यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हैं, आपके नए मौक़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 26 सितंबर 2025 फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से मनकीरा में सेमिनार, सीओ हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास ने सेमिनार से खिताब किया। 15 से 27 सितंबर तक 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज मोहम्मद अतहर हाशमी से। जी अतहर, आगाह करें। आज सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ सीओ हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास खान साहब मौजूद हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है ये बच्चेदानी के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं और जो इसकी पीक एज है यानी जिसमें ये सबसे ज्यादा होता है वो 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र होती है। और ऐसी खवातीन जिनको पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV अगर वो मौजूद हो तो उनमें ये कैंसर पाया जाता है। अलबत्ता कैंसर की कोई उम्र नहीं होती, आमतौर पे ये कैंसर 15 साल से नीचे नहीं होता और 45 साल से ऊपर इसका पीक इंसिडेंस होता है। ये ऐसा कैंसर है और ये वाहिद कैंसर है जो वैक्सीन से रोका जा सकता है। और अब पंजाब में पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां पे ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की जा रही है और ये 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक हमारी कौमी मुहिम होगी, जहां हम घर घर जाके और स्कूल्स और जो हमारी कम्युनिटी है वहां पे हमारी टीम्स पहुंचेंगी और वहां जाके ये वैक्सीनेट करेंगे। इंशाल्लाह हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं और हम इस एज ग्रुप पे कोशिश करेंगे कि हम 100% लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं ताकि फ्यूचर के कैंसर से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर मजहर अब्बास साहब का कहना है कि ये कौमी मुहिम है और कौमी फिलियत समझकर तमाम जो स्टेक होल्डर हैं माशरे के वो इसमें हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अतहर हाशमी। सूबाई मुहतसिब पंजाब को ISO 2015 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस सर्टिफिकेट मिलने पर कोटद्दू ऑफिस में तकरीब। लिया तोंसा कोटद्दू के कंसल्टेंट अमीर खटक ने खिताब किया। मजीद बताएंगे शफकत मलाना। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का लम्हा है कि ISO सर्टिफाइड की जानिब से क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट सूबाई मुहतसिब को फराहम कर दिया गया है, जिसके सिलसिले में आज सूबाई दफ्तर जो कोटद्दू में है उसमें एक पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कंसल्टेंट अमीर खटक साहब ने यहाँ पे लोगों से खिताब किया। मजीद हमारे साथ खटक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सूबाई मुहतसिब का अदारा 1997 में कायम हुआ था और ये पंजाब के तमाम शहरियों के लिए उनकी जो भी सरकारी महकमों से शिकायत हों वो हमारे पास दर्ज करवा सकते हैं और उसके हज़ाले के लिए हम मुतलका इदारों से राब्ता करते हैं और उनकी शिकायत को उनके हज़ाले के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और इस वक्त भी तकरीबन 80 से 90% लोगों की शिकायत का
हर सतह पे अजाला करने में कामयाब होते हैं। ये इलाकाई दफ्तर जो है ये लिया, कोटद्दू और तौसा के लिए है। मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते में 2 दिन लिया में, 2 दिन कोटद्दू में और 1 दिन तौसा में लोगों से मिलूं और उनकी शिकायत को सुनूं और उनके इजाले के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम उठाऊं। जी बिल्कुल, ये खट्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी जो मौसम है और जो ये सूबाई मौसम का यहाँ पे दफ्तर बनाया गया है, इनका काम जो है कि लोगों को वो बगैर वकील और बगैर किसी तकलीफ के यहाँ पे उनकी जो शिकायत है उनके अजाले के लिए फौरी इक़दाम किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। जमीन और आसमान ने खुशी मनाई, रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी आई। रहीम यार खान में सरकार दो आलम की विलादत के हवाले से तालीमी इदारों में अशरे रहमतुल आलमीन की तकरीबात का सिलसिला जारी है। तालबात के माबैन नातिया और क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आगाह करें। रहीम यार खान में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कौनैन शाफी माशा रसूल पाक सल्लल्लाहु की विलादत और बासादत के हवाले से हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पे ज़िले भर के तमाम तालीमी इदारों में अशरा रहमतुल आलमीन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और आज भी जो है वो नाते और इसके साथ साथ क्विज मुकाबले समेत दीगर जो है वो तकरीब का जो है वो हिस्सा नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर राना इस्माइल साहब। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जो इस जज्बे से मना रही है, तो इसी सिलसिले में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस रहीम यार खां N5 सेक्टर 3 ने भी आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रहीम यार खां में तकरीब मुनक़िद की है। मैं पंजाब ग्रुप इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर प्रोफेसर अयूब खां साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने आज हमें इस तकरीब में मदऊ किया और इस हवाले से बच्चों में क्विज़ कंपटीशन सीरत के हवाले से, इसके अलावा तिलावत कलाम पाक क़िरात कंपटीशन था और मुकाबला महफ़िल नात भी था। उसमें बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अव्वल दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली